Hello, my dear student. You are Aradhna ma'am once again with new topic in our YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Okay, beta. Today's topic is quite related with the previous one, which we have discussed power sharing. Okay. Today we are going to discuss about federalism. Now, the very first basic necessity we should understand the meaning of the federalism. I will discuss again the case of Belgium and Sri Lanka. Beta, you are familiar in Belgium before 1993. There was unitary type of government, means the centralization of powers was in the hand of the central government was more powerful as comparatively to the state government. But there was so much resentment के लो थोड़ा सा ग्रिम टेंस एटमोसफियर वाज देयर म्यूचुअल जो ट्रस्ट था वो खत्म हो रहा था बिकॉज डच वर इन द मेजोरिटी बट minority people French were quite rich and powerful, so there was quite resentment there. But to solve this problem, 1993 Belgium transferred from unitary to federal government and power shifted from central government to the state government and community government also, matlab decentralization. Okay, I hope you understood. There was decentralization of the powers distributed among the different levels of government. Okay, federalism means division of power among the different level of the government. Basically, there are two or more types of government in federal spirit of federalism. So in Sri Lanka, we have also discussed Sri Lanka. They follow the majoritarian rule. Sinhala, they declared the Sinhala official language and gave Buddhism a preference to the Buddha religion, and also Sinhala people given the government job and government institution and colleges, so many special preference was given, and this resulted into civil war. Civil war means set back to the economic development of the country. Reign of terror was there. अंत का शासक हो गया. लिट्टे जिसको हम लोग कह ले, लिट्टे जो थे वो एक टेररिस्ट ग्रुप थे. प्रभाकरण वॉज द हेड. और क्या हुआ एंड में फिर श्रीलंका को मानना पड़ा मेजोरिटेरियन नहीं, कॉमन एग्रीमेंट से चलेगा. तो वहां पे पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति वापस आई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जब म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ तो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहां पे वापस आई. ओके, this we have discussed, and today we are going to discuss about the unitary government also. Federalism means division of power amongst the different level of government, central government, state government and local level. As in India, central government नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो इस टाइम हेड है वो सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट के हेड है. और इंडिया की 28 स्टेट है, हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है. बट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, दोज ऑल ऑफ दोज आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो अपनी मर्जी से काम करते हैं. ओके, वेन एवर वेयर एवर दे नीड एनी हेल्प और एनी एडवाइस दे कैन, but they are not working as a subordinate under the central government. Okay, they have their own authority, own power. Similarly, local, this is the federalism, division of power. Okay, so this is the spirit of the federalism. Whereas as other side, contrast to the federalism, unitary power is in the hand of the only center authority. Centralization of power, एक ही grip है पूरी. ओके, एक ही मुट्ठी में है सारी पावर और सारी अथॉरिटी. बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है, दे विल वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज देयर सबॉर्डिनेट. उनकी सबॉर्डिनेट की तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया वही ओबे करना, वही काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना. इन चाइना सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वही सबको करना है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे टोटली रॉन्ग हो फिर भी सिर झुका के.
ओके, सबॉर्डिनेट की तरह उनके काम करना है. सो दिस वाज द मेन, ओके, मीनिंग या फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड unitary type of government. Now we are going to discuss the key features of federalism. Okay, basic. पहला स्पिरिट क्या है, पहला फीचर क्या है फेडरलिज्म का? फेडरलिज्म की डिमांड ही यही है कि देयर शुड बी 2 और मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये नहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरी कंट्री पे रूल करे, प्रॉपरली देख पाएगा ना, नो. फेडरलिज्म में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, 2 और मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एज इन इंडिया. हाँ, सेंटर में गवर्नमेंट है, फिर हर स्टेट में गवर्नमेंट है जो अपनी स्टेट को खुद वर्क करती है, लुक आफ्टर और या वर्किंग जो भी कर रही है, और फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट है. इसी तरह बेल्जियम में था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट. दे ऑल आर टोटली इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग स्फीयर. ओके, वर्किंग फील्ड में टोटली इंडिपेंडेंट एंड नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड है फीचर इसका ओन जुरिस्डिक्शन. हर एक का अपना क्षेत्राधिकार है. जैसे सब्जेक्ट लिस्ट वी हैव डिस्कस, दैट आई विल ऑल्सो गिव द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हर एक सब्जेक्ट लिस्ट मेंशन्ड होती है कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट का राइट है. फिर भी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट्स है. ओके, सो ये जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता. हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट लिस्ट जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं, हर एक को एरिया दिए गए हैं लॉ बनाने के, काम करने के, उसी के अंडर रह के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, काम करते हैं. इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी का मामला ना आ जाए, तब तक नहीं. देन है थर्ड, अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड. जो भी अथॉरिटी है, पावर है, एग्जिस्टेंस है हर गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया होता है. अपने आप नहीं कि हम जीत गए, हम राजा बन गए. कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही चलना है. लॉ के अंडर रह के काम करना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको दिया है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कि उसकी दादागिरी करे या और किसी ने. ओके, सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उनको दिया है. देन फोर्थ है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज. जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती अकेले ही. ओके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, पावर में है इस टाइम, बीजेपी की गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, कल को वो चाहे कि ये लॉ मुझे पसंद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मेरी ही पार्टी के मेंबर मेजोरिटी में. दिस इज नॉट सो. इसके लिए सेंटर पार्लियामेंट तो काम करेगी ही करेगी, स्टेट की भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट लेनी पड़ती है. आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से पास करना है, फिर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से भी होना जरूरी है. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो. मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ वन, कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है. अपनी मर्जी से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है तो मैं ये करूंगा, मेरे को ये है. कोर्ट है, कोर्ट अंपायर की. जैसे मैच में बॉलर, क्रिकेट मैच देखा ना, बैट्समैन है कि बॉलर सही है, या हॉकी का मैच या फुटबॉल का, अंपायर की क्या है, किसकी गलती है अंपायर निकालेगा, कौन डिफॉल्टर है कौन विनर है, अंपायर अनाउंस करता है. ऐसे ही कोर्ट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जब डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या किसी भी चीज को लेकर असहमति, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो कोर्ट हमेशा अंपायर की पार्ट प्ले करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, व्याख्या, कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे है, वी हैव टू फॉलो, ऑल ऑफ यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, द लॉ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंगली. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. टैक्स कौन सा गवर्नमेंट कौन सी एरिया में इकट्ठा करेगी, ये भी पूरा मेंशन है.
जैसे इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाता है वो उनको, और इसी तरह से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल जो भी पे कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये भी क्लियरली मेंशन है कि रेवेन्यू जो है कौन कौन सी गवर्नमेंट को जाएंगे, पैसे इकट्ठे करने के मामले में भी लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। ये भी क्लियरली मेंशन है, हर एक की पावर है अलग अलग फील्ड में। देन नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरलिज्म का है उसमें ड्यूल, दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके उद्देश्य हैं। एक तो पीस प्रॉस्पेरिटी रहे, प्रोग्रेस रहे, टीम स्पिरिट रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, सो मेनी थिंग। ओके, ये फेडरलिज्म का मेन स्पिरिट है और इसी को लेके चलना है। क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना है, आपसी सहमति, प्यार और विश्वास के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, तालमेल के साथ चलना है। ये फेडरलिज्म का स्पिरिट है और ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इसका यही। अब बैलेंस ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि एक इतना पावरफुल ना हो जाए कि दूसरे को सांस लेने की भी, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को बैलेंस, पावर का बैलेंस रखा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी का मैटर उसके पास है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ही अपनी चलाएगी। किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान या ब्लैकमेल नहीं करेगी। इसी तरह से स्टेट के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो और लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। जैसे जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बहुत सी हो रही थी, इसलिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर किया और प्रेसिडेंट रूल लगाया। ओके, अगर किसी और स्टेट में, ये सबको पता है इसलिए एग्री, अगर किसी और स्टेट में ऐसे होता है देन दे कैन मूव टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। सो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि कोर्ट जो है वो मुझे जवाब देना पड़ेगा, लॉ के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। दिस इज बैलेंस ऑफ पावर। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक कि फेडरलिज्म का स्पिरिट ये डिपेंड किस पे करता है बेटा। ये हिस्टोरिकल चीजें भी कुछ एक है, ऐतिहासिक। कईयों पे फेडरलिज्म जबरदस्ती लाना पड़ा और कई अपने आप ही मान गए। गेटिंग माई थिंग? कई इमेच्योर बच्चों की तरह। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था 1975 से पहले, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, बट चाइना ने तिब्बत के ऊपर पहले कब्जा किया और फिर सिक्किम के ऊपर भी कब्जा करने लगा। तो सिक्किम को लगा, मैं तो कहूंगी वाइज डिसीजन ही है, कि चाइना मेरे ऊपर कंट्रोल कर ले, कब्जा कर ले, मैं चाइना का सामना नहीं कर सकता, बेटर है मैं इंडिया में शामिल हो जाऊं। ये इंडिया के अंदर शामिल हो गया। सो फेडरलिज्म का स्पिरिट ये कमिंग टुगेदर है, अपने आप आया ये सिक्किम इंडिया के पास। ओके, सो इसी तरह से कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? यूएसए, स्पेन और अदर कंट्री जो हैं वो अपने आप ही, ऑस्ट्रेलिया अपने आप ही ये इकट्ठे मिले हैं, इकट्ठे आने के लिए कि हम लोग एक पावरफुल स्टेट के अंदर रह के मोर सिक्योर फील करते हैं, सॉवरन फील करते हैं। यूएसए जो था एक टूटा हुआ बिखरा छोटी छोटी स्टेट थी और ये इकट्ठे हो गई। ओके, ये इकट्ठे होगी, आज देखो एक सुपर पावरफुल बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अलग अलग हो जाती तो क्या सुपर पावर बन पाती? इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। ये सारे इकट्ठे आए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ताकि सॉवरन रहे, पावरफुल रहे, सिक्योर रहे। ओके, समझ लगी है? इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अपने आप जुड़ जाना, मिल जाना और एक फेडरेशन बना लेना। ओके, सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर, पकड़ के रखना, जबरदस्ती चाहे सही। ये इसमें इंडिया का नंबर 1 पे मैं एग्जांपल दूंगी। कैसे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी हैदराबाद, जूनागढ़, आपको पता है,
उनको जबरदस्ती फेडरेशन में पहले ही। और अब जम्मू कश्मीर का बैटर देख लो कैसे है, एक होल्डिंग टुगेदर वाला ही काम है ना। जम्मू कश्मीर को इतना नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। चाइना किस तरह से, पाकिस्तानी पीपल आर सो वाइज, इतने समझदार है, वो वहां की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि चाइना के अंदर इतना झुक के काम ना करो, हम लोग दोबारा गुलाम हो जाएंगे चाइना के अंदर, पहले ब्रिटेन के अंदर। बट जम्मू कश्मीर क्या अलग रह के सॉवरन सिक्योर स्टेट बन पाएगा? नो। चाइना कब कब्जा कर ले, पावरफुल कंट्रीज के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हम लोगों में समझदारी, इंडियंस में नहीं है कि हम लोग इकट्ठे यूनाइटेड रह के ऑल ऑफ अस आर सिक्योर, पावरफुल, पूरे दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं यूएसए की तरह। बट इंडियन फेडरेशन को होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, पकड़ के जकड़ के कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉ लगाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। बेल्जियम भी यही है, बेल्जियम भी यही है बेटा, कि वहां पे इकट्ठे लाया गया, इसी कैटेगरी में आता है। वहां पे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ओके, और इधर इंडिया बेल्जियम जैसे एग्जाम्पल है जहां पे होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, बट स्टिल you have any problem, send me your problem in comment section. And this is the first part of the second chapter, federalism, from 10th standard political science. Very soon I will upload the second part of this chapter. Take the screenshot. But before leaving, same thing I want to remind you, don't forget to subscribe the channel and share it to all. Okay, thank you beta, that's all for today.